Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the recitation of Holy Quran. In previous session, we was discussed we was discussing about the generation of electricity from the renewable source of solar, instance of solar array, and produce the electricity in the form of DC voltages provided to the MPPT module, and then charge the battery. The MPPT module feed by the algorithm that is embed the module. MPPT stand for maximum power point tracking, by which it track the maximum power of point in the solar array. So this is the main stream and theme of MPPT based solar system of charge controller, and particularly the technique in MPPT module of charge controller used as the pulse width modulation. It also charge the battery by this way and then provide the DC voltages to the inverter that invert the DC voltage into the AC voltage if we want to run a particular AC supply of load by the DC source. So this is the way that how to transform the solar array of DC voltage and convert that particular variable voltages that is vary from 10 volt to 18 to 19 volt, and particularly this variable voltage is stable in charge controller of module, and that particular charge control of module is stable the inconsistency of voltages of 10 volt to 19 volt, and provide the constant voltage charge the battery, and battery out the DC voltage in stable form of 12 volt DC to the inverter circuit. The inverter invert the DC current into AC current of waveform and run or utilize the AC load of 220 volts. Same is that if we want to run the DC load instead of AC, so we need to convert that particular DC voltage into DC voltage, same and certain, with the kind of chopper circuits of DC. DC chopper circuits are in three mainstream of types, that are buck converter, boost converter, and buck boost converter, to utilize the particular DC load. Before this session, in previous session, we already discussed about the working principle and the basic theory of buck boost and buck boost converter, that I again repeat the particular theory that why we use buck converter, the DC to DC converter. The buck converter is used where we need a lower level of voltage from higher. As an example of level of voltage, if we need to charge our mobile phone on 5 volt and DC volt battery provide the DC voltage of 12 volt, and if we want to convert 12 volt DC into 5 volt DC, in which means the step down in DC, for the particular step down we are not using the transformer, we need to use a converter, that is the chopper circuit of DC to DC converter that convert DC level of voltage of 12 volt into step down to 5 volt. Okay. If you have any kind of question till now in buck converter and all the kind of set scenarios, please you may ask. I will answer the kind of question. If you have any kind of query or question, please feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries. And if you have no kind of question or query, then I continue the session. So we've all discussed about the buck converter working principle. To
feed the DC lower level of 5 volt from 12 volt of higher voltage. The opposite scenario is that if we want to run the DC voltage for, I'm talking about the boost converter. So if we want to run a high voltage of DC load of supply of particular load, is that what? That load is 18 or 19 volt of DC of your laptop. Laptop charge or feed by the DC voltage of 18 or 19 volt, but battery have the operating voltage 12 volt. And how a 12 volt operate a 19 volt appliance of DC? So we need a particular converter, that is the boost converter, that convert DC to DC level from minimum 12 volt to maximum 19 volt. So that's the way, that's how we can transform the higher level of voltage to the lower level of voltage to the higher level of voltage from 12 volt to 19 volt battery charging of laptop. So these are the two applications for buck converter and boost converter respectively. And can anybody tell me that what will be the third converter circuit of DC to DC converter? Can anybody tell me its name and working principle, that where we can use that particular chopper circuit of third one? I already tell you guys. Sir, third one is a buck boost converter. Buck boost converter, okay. And what is the scenario and why we use buck boost converter and where we... Yes, can anybody tell me? सर बक बूस्ट कन्वर्टर जो ना वहाँ यूज होगा जहाँ पे वेरिएबल मींस कि हमें डीसी मिल रही होगी तो ये उसको स्टेबल करके देगा सर हमें आउटपुट पे. Yes, you are right. Particularly if buck boost converter is the third chopper circuit from out of buck boost and buck boost converter. Buck boost converter is a particular kind of circuit of chopper circuit DC to DC converter where we can use it use at this place when we need from higher to lower or lower to higher level of particular need of supply of DC load. So particularly we need to use that particular load. अच्छा, बक बूस्ट कन्वर्टर में जिस तरह आसिफ साहब ने बताया, खासियत ये होती है कि अगर आपके वोल्टेज पीछे से कम या ज़्यादा वेरिएबल लेवल पे चल रहे हैं और आपको उससे कांस्टेंट सप्लाई निकालनी हो तो आप उसके लिए बक बूस्ट कन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपको डीसी की सप्लाई बाज़ दफ़ा 5 चाहिए हो, बाज़ दफ़ा 19 चाहिए हो, तो आप बार बार कन्वर्टर तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि आप बक बूस्ट कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे जिनमें एडजस्टमेंट्स होती हैं. समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, तीनों के एग्जांपल बताता हूँ वन बाय वन. एडजस्टमेंट कैसे करते हैं बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर में. तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये होती है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक कन्वर्टर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं तीनों की एक साथ एप्लीकेशन, एग्जांपल और यूजेज और एडजस्टमेंट बता रहा हूँ. ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें, सिर्फ एडजस्टमेंट रह गई वो बताता हूँ मैं आपको. बक कन्वर्टर में एडजस्टमेंट ऐसे होती है, इसका एक कार्ड या सर्किट होता है, उसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ होता है. बक कन्वर्टर की एक लिमिट होती है. मिसाल के तौर पे आप इसको कब तक बक कर सकते हैं. आपको वोल्टेज 12 वोल्ट बैटरी के मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको 3 वोल्ट चलाना है या 5 वोल्ट चलाना है. अब बक कन्वर्टर में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये आपको 6 वोल्ट से 3 वोल्ट तक कम कर सकती है. और ये एडजस्टमेंट आप एक वेरिएबल रजिस्टर जो कि स्क्रू के ज़रिए से उसके आप स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हुए स्क्रू को कम ज़्यादा करते हैं और उसके नतीजे में 6 से 3 वोल्ट वो आप डीसी वोल्ट मीटर के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं. उसके नतीजे में आपको वोल्टेज हासिल हो जाते हैं. 6 थोड़ा कम करेंगे तो 5, फिर थोड़ा कम करेंगे तो 4, फिर थोड़ा कम करेंगे तो 3, फिर उससे वो नीचे नहीं आ पाता. तो ये एडजस्टमेंट आप इस तरीके से कर पाते हैं बक कन्वर्टर के अंदर. ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फिर हम आते हैं बूस्ट यस सर. कन्वर्टर. ओके, बूस्ट कन्वर्टर में हम ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें बूस्ट करना है, बूस्ट मतलब बढ़ाना है. 12 वोल्ट आपको बैटरी से मिल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए जो है वो 19 चाहिए या 22 चाहिए. तो आप करेंगे क्या कि एडजस्टमेंट इसी तरह बूस्ट कन्वर्टर में होती है कि वो कहाँ तक बूस्ट कर सकता है. ठीक है, उसमें वेरिएबल एडजस्टमेंट्स होती हैं. तो मिसाल के तौर पे जो बूस्ट कन्वर्टर है वो 15 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकता है, बूस्ट कर सकता है 12 वोल्ट को. तो आप वोल्ट मीटर उसके आउटपुट पे लगाते हैं
और उसके नतीजे में अपने एडजस्टमेंट ऑफ स्क्रू से उसको मूव करते हैं, तो उसके नतीजे में आपको जो आउटकम हासिल होता है डीसी वोल्टेज के नतीजे में, तो उससे आपको वोल्टेज कम ज़्यादा होते हुए मिल रहे होते हैं और आप उससे बढ़ा सकते हैं, जो कि लेकिन 25 वोल्ट से ऊपर उसकी एडजस्टमेंट नहीं जाती। ये ध्यान में रखिएगा। जो आपका बूस्ट कन्वर्टर होता है, मुख्तलिफ तरह के भी बूस्ट कन्वर्टर आते हैं जो कि मुख्तलिफ अपनी रेंजेस के मुताबिक आते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने बूस्ट कन्वर्टर को डिस्कस कर लिया है कि बूस्ट कन्वर्टर आपका जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर यहाँ यूज़ भी हो रहा है अगर आप देखें। ठीक है, मतलब 12 वोल्ट से अगर आपको 19 वोल्ट का कोई लोड चलाना है, जैसे लैपटॉप को चार्ज करना है या लैपटॉप को ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आपको बैटरी से 19 वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करना होगा बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से है वो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है कि ये ड्यूटी साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है और उसके नतीजे में ये एडजस्ट करता है वोल्टेजेस को, जो कि आपको बढ़ा के वोल्टेज देता है। जो ड्यूटी साइकिल का खेल होता है इसमें सारा। आगे बात करते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर की। बक बूस्ट कन्वर्टर की हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक एसेंशियल और मेजर इम्पैक्ट है बक बूस्ट कन्वर्टर, और ख़ास तौर पे ये लगा हुआ होता है चार्ज कंट्रोलर के अंदर भी। ठीक है, तो बक बूस्ट कन्वर्टर में खासियत ये होती है कि अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं और कम आ रहे हो, देखिए सोलर से वोल्टेज 10 भी आ जाते हैं और 15 भी आ जाते हैं, 18 भी आ जाते हैं, तो आपके कम ज़्यादा जो वोल्ट आ रहे होते हैं तो इनमें ये बक बूस्ट कन्वर्टर ये भी यहाँ पे काम करता है। ये 2-3 कैटेगरी का एमपीपीटी मॉड्यूल होता है जो कि वेरिएबल वोल्टेजेस के ऊपर भी काम करता है, डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर भी काम करता है और पल्स विद मॉड्यूलेशन की टेक्निक के ऊपर भी चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी मॉड्यूल काम करता है। अब इसमें अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं और आपको कम चाहिए, और कम है और ज़्यादा चाहिए, तो उसकी बक बूस्ट कन्वर्टर के 2 एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको बक करना है तो आप कम कर दें, अगर आपको बूस्ट करना है तो आप वो बढ़ा दें दूसरे वैरिएबल के जरिए। तो इसमें बक बूस्ट कन्वर्टर में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो 2 होती हैं। ठीक है, बाकी बक में एक होती है, बूस्ट में एक होती है, बक बूस्ट में 2 होती हैं। ठीक है, तो ये उसके मुताबिक है, एक बढ़ाने के लिए और एक कम करने के लिए। यहाँ तक हमने ये कॉन्सेप्ट जो कि डीसी जनरेशन से लोड यूटिलाइजेशन ऑफ एसी और डीसी का हमने डिस्कस किया है। क्या यहाँ तक कोई बात किसी की समझ में अगर नहीं आई है तो पूछ लीजिए मुझसे, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। यहाँ के सर ये बूस्ट कन्वर्टर तो लगा रहे हैं ना, तो एवीआर भी तो लगा सकते हैं इसकी जगह, बार बार वेरिएबल छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एवीआर कैसे काम करेगा इसमें? सर आपसे सवाल है सर मेरा ये। नहीं तो एवीआर क्या होता है ये तो बताएं पहले, फिर हम उससे बात करते हैं आगे। सर ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा, ये कहाँ लगा हुआ होता है? सर जैसे जनरेटर वगैरह में लगा हुआ होता है। जनरेटर में लगा होता है। और जनरेटर क्या चलाता है? लोड एसी चलाता है। एसी लोड चलाता है सर। हम बात कर रहे हैं डीसी लोड की। नहीं सर, सवाल ये इसमें लग सकता है, ये मेरा सवाल है। सवाल ये है कि जवाब इसका ये है कि लग सकता है, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है वो ड्राइव नहीं होगी। आपने ऐसा रेगुलेटेड आईसीज होती हैं, आपने नाम सुना है? अभी आप कौन से सेमेस्टर में हैं? तीसरे सेमेस्टर में सर। तीसरे में। तो आपने जो बेसिक लेवल के वो रेक्टिफायर सर्किट पढ़े होंगे जो इनिशियल लेवल में पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें आपने ये सुना होगा कि एसी टू डीसी कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज हासिल करने के लिए रेगुलेटर का सर्किट लगाया जाता है। ठीक है, वो एवीआर के सेंस में ज़रूर लेता है, लेकिन वो रेगुलेटेड सर्किट कहलाता है, जिसमें आपको अगर 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो वो 12 देगा, और अगर आपको 9 मिल रहे हैं और 12 बनाने हैं तो भी 12 कर देगा, 15 मिल रहे हैं और आपको 12 बनाना है तो भी वो 12 निकाल देगा। तो ये रेगुलेटेड आईसी आती है, लेकिन ये हैवी ड्यूटी लोड्स नहीं चला सकती, इसलिए हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, वरना मैं इसको मज़ीद वजाहत करता हूँ उसकी। ठीक है सर, आगे बढ़। अच्छा जी, अब इसमें कोई सवाल नहीं है तो उस पर बात करते हैं हम। जो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर जो रेगुलेशन की जा रही है कन्वर्टर्स के ज़रिए, चॉपर सर्किट के ज़रिए, ये एक सस्टेनेबल किस्म का आउटकम इससे हासिल होता है। दूसरी बात यह है, इसमें ड्यूटी साइकिल इन्वॉल्व होता है। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल आपको वेव की सूरत में यहाँ पे मिल रहा है, डीसी की भी एक वेव होती है, तो उसके सिग्नल को मल्टीपल टाइम्स चॉप किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है, जिसके नतीजे में आपको उसका सिग्नल प्रॉपर तरीके से हासिल होता है, जो कि एक एवरेज करना कहते हैं इसको, उसके नतीजे में आपको हासिल होता है।
अगर आप रेगुलेटेड आईसी इस्तेमाल करेंगे तो रेगुलेटेड आईसी के अंदर ना बस एक आईसी होती है और वो हैवी ड्यूटी लोड्स नहीं चला सकती, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर होते हैं मुख्तलिफ तरह के एम्पेयर रेटिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि अगर आपको 19 एम्पेयर का लोड चलाना है, 25 एम्पेयर का लोड चलाना है, तो उसके मुताबिक इसका साइज़ बड़ा हो रहा होता है और फिर हम इन कन्वर्टर्स को इस्तेमाल वहाँ करते हैं। लेकिन अगर हमें मोबाइल के चार्जर में इस्तेमाल करना हो या फिर एक छोटे से चार्जिंग फ़ैन को चलाना हो या फिर कोई सी छोटी अप्लाइंस को ऑपरेट करना हो डीसी के 12 वोल्ट तक, 18 वोल्ट तक भी, लेकिन एम्पेयर वाइज नहीं, वोल्ट वाइज, तो फिर वहाँ पर हम अपनी रेगुलेटेड आईसीज को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये साहब ने कुछ बताया था AVR का कॉन्सेप्ट। लेकिन AVR का कॉन्सेप्ट नहीं कहते, हम उसे वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी कहते हैं। उसे रेगुलेटर सर्किट उससे बनते हैं, फिर वो ड्राइवर सर्किट भी कहलाता है। तो वो डीसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा एम्पेयर का लोड चलाने के लिए नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम डीसी टू डीसी चॉपर सर्किट की बात करें जो मैंने इस हवाले से बताई, तो ये हैवी ड्यूटी एम्पेयर ऑफ लोड को भी ड्राइव कर सकता है, फिर ज़्यादा एम्पेयर के रेटिंग के मुताबिक इसके सर्किट्स भी आते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सर ये जी। चॉपर जो है ये यूपीएस वगैरह में भी यूज होते हैं, जो आजकल यूपीएस आ रहे हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स नहीं होते। अ, वो चॉपर सर्किट उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कार्ड बेस्ड सर्किटरी कहलाती है। जैसे उसके हैं एक ब्रांड है बड़ा अच्छा आता है, मुझे नाम अगर आपको याद हो, जो आप कह रहे हैं, कोई नाम लीजिएगा उसका ब्रांड का। होमेज है सर, होमेज, होमेज है, होमेज। विंटॉप है, इस टाइप के। जी जी जी, इनके जो यूपीएस आ रहे हैं इनके अंदर चॉपर सर्किट लगे हुए हैं और ये सर्किट बेस्ड काम हो रहा है। इसमें ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाईज और स्विचेस लगे हुए होते हैं और लाइट वेट होते हैं। आप होमेज के वो उठाएं किट कितनी हल्की है, जबकि एक नॉर्मल यूपीएस ट्रांसफार्मर बेस उठाएं तो वो ट्रांसफार्मर की वजह से हैवी ड्यूटी बहुत भारी होगा। लेकिन याद रखें जो ट्रांसफार्मर बेस्ड यूपीएस बने होते हैं उनको रिपेयर आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन होम एज के जो कार्ड बेस्ड इन्वर्टर हैं इनके कुछ फॉल्ट इस लेवल के भी होते हैं जो कि रिपेयरेबल नहीं होते, फिर आपको पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है और नया खरीदना पड़ता है। ये एक डीमेरिट भी है होम एज के इन्वर्टर्स के अंदर भी। तो तकरीबन सबके अंदर ही यही फॉल्ट होता है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि रिपेयरेबल चीज़ें कुछ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रिपेयरेबल नहीं होती। यूपीएस जो ट्रांसफार्मर बेस है ना वो हमेशा रिपेयर हो जाएगा, आप देख लें, पूछ लें यस किसी सर। यूपीएस वाले से। लेकिन जो होम एज के इन्वर्टर या जो किट आती है इनकी कार्ड बेस बना हुआ है लाइट वेट, ये अगर कुछ इस तरह के माइन्यूट फॉल्ट होते हैं कि अगर इनमें आ जाए तो वो कोई रिपेयर नहीं करता, फिर आप फेंक देते हैं इसको और नया लेते हैं इसमें, वो रिपेयर नहीं होते। बाज़ इस तरह के फॉल्ट भी हैं होम एज के इन्वर्टर में, तो ये भी एक इसमें एस्पेक्ट है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जो होम एज के होते हैं उनके अंदर भी चॉपर सर्किट्स लगे हुए होते हैं जो कि लाइट वेट उसी की बुनियाद पे बनाए गए, चॉपर सर्किट की बुनियाद पे, और ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाईज और स्विचेस उसमें लगाए गए हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, कोई सवाल, कोई क्वेरी किसी के जहन में हो तो पूछ लें, डिस्कस कर लें, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। होपफुली एवरीथिंग ठीक इज है क्लियर सर। है क्लियर। सर, क्लियर है। तो आगे चलते हैं जनाब। चल भाई आ गया। डिस्कशन अबाउट द एमपीपीटी। हम एमपीपीटी को ज़रा मज़ीद थोड़ा वजाहत से डिस्कस कर लें कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जो होती है चेक्स द आउटपुट ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से, फोटोवोल्टिक कहते हैं ये जो सोलर सिस्टम हमें अपने वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इससे पीवी कहते हैं फोटोवोल्टिक। तो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आउटपुट के नतीजे में एमपीपीटी को मिलते हैं, ठीक है। डायग्राम ध्यान में रखिएगा जो ये वाली है। कंपेयर इट टू बैटरी वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज आपको मिल रहे हैं सोलर के, वो बैटरी के वोल्टेज सबसे पहले कंपेयर करता है। देन फिक्स व्हाट इज द बेस्ट पावर दैट पीवी मॉड्यूल कैन प्रोवाइड, और फिर वो पीवी वोल्टेज जो कि बैटरी के लिए सूटेबल है वो उसको वो प्रोवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने बैटरी को चार्ज करना है और बैटरी आपकी 12 वोल्ट पे चार्ज होती है या 13 वोल्ट पे चार्ज होती है। अब आपको सोलर पैनल से इत्तफाकिया तौर पे 13 वोल्ट मिल रहे थे, तो क्या करेगा जो एमपीपीटी है, वो 13 वोल्ट लेगा और 13 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है ये तो इट चार्ज दी बैटरी एंड कन्वर्ट इट टू द बेस्ट वोल्टेज टू द मैक्सिमम करंट इनटू बैटरी, और वो करंट उस वोल्टेज से प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर बैटरी आपकी सस्टेनेबल चार्ज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ इसी पॉइंट पे, ये याद रखिएगा जब बैटरी आपकी डेड हुई भी होती है, चार्ज नहीं हुई भी होती, तो वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर ड्रेन करती है, ठीक है। ये आप एम मीटर को, जो आपका क्लैम्प मीटर है, उसको एक किसी वायर पे बैटरी के टर्मिनल पे आके चेक कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग लेवल पे आप करेंगे तो वो 7 एम्पेयर ले रही होगी,
लेकिन अगर आप 1 घंटे के बाद जाके देखेंगे तो वो जो एम्पेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम लेना शुरू होगी, क्योंकि बैटरी अब भरना शुरू हो गई है चार्ज के हवाले से। तो वो अब 7 एम्पेयर नहीं लेगी, बल्कि वो 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर और फिर 1 एम्पेयर पे आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी चार्ज हो रही है और करंट की ड्रेनेज लेने की जो कैपेबिलिटी है वो उसकी कम हो गई है, इसीलिए बैटरी फुल हो गई है। तो वो एम्पेयर कम लेगी यूटिलाइजेशन के लेवल पे सोर्स से बैटरी को चार्ज करने के लिए। क्या ये बात यहाँ पर सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो मैंने बहुत दफ़ा करा हुआ है, ये तो आप भी देख सकते हैं आसानी से। इट कैन ऑल्सो सप्लाइड पावर टू अ डीसी लोड विच इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ बैटरी, और इसके ज़रिए से सप्लाई जो मिलती है वो बैटरी को आप डायरेक्टली कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। एन MPPT जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पॉइंट कहलाता है, चार्ज कंट्रोलर ऑप्टिमाइजेज द कनेक्शन बिटवीन सोलर पैनल्स एंड योर बैटरी और द यूटिलिटी ग्रिड। ठीक है। A pulse width modulation based charge controller will maintain about the same current as the PV array. This means that the output power current into voltage, जो कि पावर का P इक्वल टू V इंटू आई होता है फॉर्मूला, विल बी रिड्यूस। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, MPPT या पल्स विद मॉड्यूलेशन बेस्ड जो चार्ज कंट्रोलर टेक्निक होती है, इनमें खासियत ये होती है, मैंने एक सिनेरियो आपको दिया था कि अगर 13 वोल्ट सोलर पैनल से मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, 13 वोल्ट मुझे यहाँ से निकल के मिल रहे हैं और बैटरी को चार्ज करने के लिए 13 वोल्ट चाहिए। 12 वोल्ट की बैटरी 13 वोल्ट पे चार्ज होती है, तो 13 वोल्ट आएंगे, 13 वोल्ट मिल जाएंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे, और उसके मुताबिक फिर एम्पेयर भी आएगा, वो चार्ज कर देगी। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं बैटरी को चार्ज करना चाहता हूँ 13 वोल्ट पे, लेकिन अबर आलूद मौसम हो गया और सोलर जो है पैदा कर रहा है 13 नहीं बल्कि 11 वोल्टेज, तो फिर क्या होगा? जी जनाब। सर ये MPPT फिर भी 13 वोल्ट ही देगा बैटरी को आगे। कैसे? PFW के थ्रू। सर इसका वर्क है, जी जी बोले। तब PWM का यूज करेंगे। PWM एक बटन है क्या? मतलब इसको दबा देंगे तो वो वोल्टेज बढ़ा देगा, ऐसे? आपने कहा ना सर, इसका रेजिस्टेंस सर्किट वेरिएबल होता है, हम लोग बढ़ा सकते हैं वोल्टेज इसके, मेरे भाई कम मैंने, कर सकते हैं। जी नहीं, आप गलत कोड कर रहे हैं। मैंने यहाँ अरे बताया चार्ज ही था नहीं बक करेगी। बूस्ट कन्वर्टर में, मैंने बक बूस्ट कन्वर्टर में वो चीज़ यहाँ बताई थी, मैंने MPPT पे नहीं बताई थी ये चीज़। मैंने ये बताया था कि बक कन्वर्टर के अंदर एडजस्टेबल होते हैं, उसके वेरिएबल को बढ़ा के वोल्टेज कम कर सकते हैं। बूस्ट कन्वर्टर में एडजस्टमेंट होते हैं, बढ़े हुए वोल्टेज को थोड़ा कम कर सकते हैं और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बक बूस्ट कन्वर्टर में 2 एडजस्टमेंट होते हैं। मैंने यहाँ बताया था वो, मैंने यहाँ नहीं बताया था वो। अब सिनेरियो यहाँ की बात आती है। और अगर यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट हो रहे हो, ज़रा समझिएगा इस बात को। आप सोच रहे होंगे जैसे यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, ऐसे यहाँ भी एडजस्टमेंट कर दें। मसला ये है, चार्ज बैटरी जो होती है ना वो 12 वोल्ट ही देती है, लेकिन हमें अगर 3 वोल्ट के मोबाइल या 5 वोल्ट के मोबाइल को चार्ज करना है तो वो 5 वोल्ट ही लेगा। 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट देगी। तो एडजस्टमेंट सिर्फ एक मरतबा करनी होती है बक बूस्ट या बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तीनों कन्वर्टर में एक मरतबा ये एडजस्टमेंट करनी होती है और फिर लोड आपका चल रहा होता है। लेकिन सोलर अरे के अंदर मसला ये होता है कि अगर आपकी रोशनी कंसिस्टेंट है सुबह 11 बजे की, तो आपको 13 वोल्ट सोलर पैनल से मिल रहे हैं, तो आप बैटरी को चार्ज कर देंगे 13 वोल्ट पे। लेकिन अगर बादल आ गए तो आपको मैक्सिमम इरेडियंस सन से नहीं मिलेगी, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि इसके ऊपर धूप नहीं आएगी, गर्मी तो रहेगी थोड़ी थोड़ी लेकिन धूप नहीं आएगी। अब उससे होगा ये कि ये 13 वोल्ट नहीं 11 वोल्ट पैदा कर देगा, तो बैटरी को तो चार्ज ये कर ही नहीं पाएगा। इसका तीसरा जी सर, सिनेरियो चार्ज ही नहीं। चार्ज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका तीसरा सिनेरियो ये है कि ना बैटरी को 13 वोल्ट चाहिए, लेकिन कड़कती हुई 1 बजे की गर्मी है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रेडियंस है कि ये 19 से 20 वोल्ट दे रहा है। तो क्या 19 से 20 वोल्ट 13 वोल्ट की बैटरी को यहाँ से यहाँ मिल जाएंगे? नो सर 13 वोल्ट ही मिलेंगे सर, क्योंकि 13 इसके वोल्ट। MPPT कंट्रोलर का काम ही यही। जी जनाब, बिल्कुल जिस तरीके से आशिक साहब ने बताया, इन्होंने यही चीज़ बताई थी। MPPT के अंदर ये बिल्ट इन एक एल्गोरिथम होता है, लिखा हुआ है MPPT का एक एल्गोरिथम होता है। इसमें MPPT काम करता है एक वर्किंग प्रिंसिपल पे, जो कि कहलाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की टेक्निक।
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर ये एडजस्टमेंट देखी जाती है कि अगर 13 वोल्ट सोलर पैनल से आए तो 13 वोल्ट की बैटरी को डायरेक्ट दे दिए जाएं, लेकिन अगर 13 वोल्ट की जगह 11 वोल्ट हो जाएं तो फिर इसके एम्पेयर को कम कर दें और वोल्टेज को बढ़ा दें, और एम्पेयर को कम करके वोल्टेज बढ़ा के 13 वोल्ट करके बैटरी को चार्ज कर दें। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया दो। एक तो अगर सेम वोल्टेज आ रहे हो तो चार्ज कर दे, कम वोल्टेज आ रहे हो तो बढ़ा दे। क्या ये दोनों बातें यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं तीसरे पे बात करता हूँ। यस सर। यस सर। तीसरे सिनेरियो में ये होता है कि अगर सोलर पैनल के ज़रिए से बहुत ज़्यादा सन की रेडियंस आपको, ये जून के महीने में बहुत गर्मी है मिल रही है आपको, और उस नतीजे में सोलर पैनल बेपनाह इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहा है, जो कि 18-19 वोल्ट तक दे रहा है, जो कि आप डायरेक्टली अगर आपने लगा दी तो बैटरी आपकी फुल के थोड़े टाइम में फट जाएगी कुछ महीनों में, तो आप ये नहीं दे सकते। अब फिर करेंगे ये कि एमपीपीटी के अंदर एक एल्गोरिथम लगा हुआ होता है जो कि 18-19 वोल्ट अगर उसको आए तो वो इसके एम्पेयर को बढ़ा देता है और वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर करें, यहाँ पे एक जिक्र था वोल्टेज इनटू करंट इक्वल टू पावर। इस पावर के फैक्टर को सेम रखना पड़ता है। अगर आप करंट बढ़ा देंगे तो वोल्टेज कम करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट कम करना पड़ेगा। तो इसके नतीजे में पावर का फैक्टर आपका सेम रहता है जिस पावर से आपको बैटरी को चार्ज करना है। समझ आ रही है ये बात? तो इस तरीके से जी सर। ज्यादा वाली वोल्टेज सेम रहेंगे सर और करंट आगे पीछे होता रहेगा? नहीं, अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहे हों सोलर से तो उस कांस्टेंट वोल्टेज को बैटरी से डायरेक्ट चार्ज हो सकती है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपको कम वोल्टेज सोलर से मिल रहे हों तो इसके एम्पेयर कम करके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, जिसके ज़रिए से बैटरी को 13 वोल्ट मिल जाते हैं। यानी एम्पेयर कम करके वोल्टेज बढ़ा के 13 वोल्ट मेंटेन करके आपको बैटरी को चार्ज करना मकसूद इस तरीके से हो पाता है। क्लियर है? अब हम तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं। जून का मौसम है और 15 जून है और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसमें। अब आपको सन की रेडियंस मैक्सिमम मिल रही है, जिसके नतीजे में जो सोलर पैनल अपने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो 18-19 वोल्ट है और बैटरी को चाहिए 13। अब इसका मतलब वोल्टेज आपको कम करने हैं तो क्या होगा? करंट बढ़ा देंगे। करंट बढ़ा देंगे और वोल्टेज कम कर देंगे तो वो 18-19 वोल्ट से 13 वोल्ट पे आएगा और करंट बढ़ जाएगा, जिसके ऊपर बैटरी 13 वोल्ट पे ही चार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पावर का फैक्टर जो होता है ना, वोल्टेज कम करंट ज़्यादा, करंट कम वोल्टेज ज़्यादा, इसको मेंटेन आगे पीछे करते हैं और पावर का फैक्टर रिमेन सेम रहता है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। क्या ये तीनों सिनेरियो के अंदर जो मैंने बात बताई है क्लियर है? यस सर। सर एक बात पूछिए, ये जो तीनों सिनेरियो है ये ऑटो ऑटो पे होता है ना? मतलब जी जनाब, इसी चीज़ का नाम एल्गोरिथम होता है, प्रोग्राम होता है, कोडिंग होती है जो आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। और यही जो जादू समझ लें, सिनेरियो समझ लें, वो एमपीपीटी के अंदर होता है। एमपीपीटी एक टेक्निक का नाम है जो कि पल्स विद मॉड्यूलेशन पे काम करती है, और इन तीनों सिनेरियो के ऊपर ये इसमें बिल्ट इन दिए जाते हैं कि जी जनाब जब ये केस हो तो ऐसे हो जाए, जब ये हो तो ऐसे हो जाए, और जब वो हो तो ऐसे हो जाए। तीनों के अंदर ये चीज़ बिल्ट इन दी जाती है। और कोई सवाल क्यूरी किसी के जहन में हो तो पूछ लें। सर ये जो सोलर है हमारा, ये लाइट पे वर्क करता है या हीट पे वर्क करता है सर? ये हीट पे वर्क करता है, लाइट पे काम नहीं करता। क्योंकि देखें दिन की रोशनी के अगर आप बात करें ना, इसमें ज़्यादा ये इरेडियंस होती है, हीट और लाइट की बात नहीं है, इरेडियंस होती है। इरेडियंस का यूनिट होता है कि मैं फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर करके होता है शायद इसका यूनिट। तो ये इरेडियंस पे काम करता है, इसमें रोशनी या हरारत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों को कैटेगराइज किया जाए तो आपकी जो हीट हॉटनेस होती है, हॉटनेस कह लें, उसकी वजह से जो हरारत के नतीजे में जितनी ज़्यादा गर्मी इसे मिलेगी ये उतने ज़्यादा एम्पेयर प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और चार्ज करेगा। अब अगर इसके सिनेरियो को आप देखें, सर्दियों के मौसम में रोशनी तो आपकी ज़्यादा होती है लेकिन उसमें हॉटनेस नहीं होती, इसीलिए ज़्यादा एम्पेयर आपको सर्दी के मौसम में नहीं मिल पाते। लेकिन गर्मी के मौसम में सस्टेनेबल वोल्टेज या ज़्यादा मिलते हैं और एम्पेयर भी ज़्यादा मिलते हैं। ये आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी देख भी सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जी सर। तो इसी तरीके से ये सिनेरियो भी है। लेकिन आजकल एक टेक्निक पे और काम हो रहा है, आप देखिएगा, जो कि
डार्क एनर्जी सोलर पे काम। डार्क एनर्जी सोलर वो है मतलब नाइट मोड में काम करने वाले, नाइट मोड सोलर, जो कि रात की रोशनी के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, क्योंकि रात के दौरान जो सूरज नहीं होता और ये सोलर पैनल काम नहीं करते, वो सुबह ही काम कर सकते हैं 4 बजे तक, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। तो ऐसे सोलर पैनल तैयार किए जा रहे हैं जो कि रात के वक्त भी काम किए जाएं, और इस पर अभी काम हो रहा है। अच्छा, अब तक जो डिस्कशन हमने करी है, कोई सवाल किसी के जहन में क्वेरी हो पूछ लीजिए, मैं आपको क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा, सवाल का जवाब दे दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये हमारी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है ना, उसमें भी बूस्टर यूज होता है सर, वो जो वोल्टेज या लॉसेज जो आ रहे होते हैं ना हमारे, उसको कंपनसेट करने के लिए। ये उसकी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं आप? सर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जी जी, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की अप्लायंस इस्तेमाल करनी है। अब वैसे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तो नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन जब बाहर ममालिक में जहाँ है वहाँ पे अलग अलग लेवल के हमें अप्लायंस इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल चार्ज करना है या बैटरी चार्ज करनी है यूटिलिटी से, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप उन कन्वर्टर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, ये मेरे ख्याल में मैं सही कह रहा हूँ। तो यहाँ से हम अभी डीसी ट्रांसमिशन तो स्टार्ट हो गया ना हमारी, जो मटियारी से लाहौर तक नया सर्किट बिछाया है इन्होंने। जी 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 बिल्कुल, 660 kV आई थिंक उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो कि मटियारी टू लाहौर फंक्शनल है। लाहौर से फिर वो फैसलाबाद फर्दर एक और ग्रिड है जो कि नेशनल ग्रिड में शामिल होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अभी रिसेंट न्यूज़ है, पिछले वीक की ही मेरे ख्याल में। सर ये कंप्लीट डीसी ट्रांसमिट करेंगे या फिर उसको कन्वर्ट करके एसी में ट्रांसमिट करेंगे, आगे जाके फिर उसको मजीद कन्वर्ट करेंगे डीसी में? ये ऐसा नहीं है। आपको पता है ये जो मटियारी टू लाहौर जो चीज़ चली है ट्रांसमिशन लाइन की, जनरेशन तो एसी में हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये डीसी की रखी गई है। उसके बाद जाके जब वो नेशनल ग्रिड में शामिल होती है ना, तो फिर उसे दोबारा एसी करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पर डीसी टू एसी कन्वर्टर, यानी जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं, वो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और जब वो रेक्टिफिकेशन है आपकी, रेक्टिफिकेशन क्या होती है कि आप वो करते हैं कम ज़्यादा। अच्छा, इनके अंदर बक बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर भी इस्तेमाल होते हैं, समझ रहे हैं? बास सर्किट आपके कम के हैं, बास सर्किट ज़्यादा के हैं, तो इनमें बक बूस्ट कन्वर्टर भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन लाइन के बक बूस्ट कन्वर्टर होते हैं। ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के बक बूस्ट कन्वर्टर हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक इंडस्ट्री गुजर रही है मटियारी टू लाहौर, आपको उसको फीड करना है और आपकी डीसी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये आप बिल्कुल जानते होंगे कि आप अपनी डीसी की अगर यूटिलिटी जा रही है तो एसी का लोड तो वह चला ही नहीं सकती, और उसमें ट्रांसफार्मर भी नहीं लग सकता। समझ रहे हैं इस बात को? तो जी सर। इसके सिनेरियो को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब ये डिस्कस हुआ है तो उसे कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एक इंडस्ट्री है जो कि मटियारी टू लाहौर के दरमियान कोई लगी हुई है, कोई शुगर मिल है या कोई सीमेंट की इंडस्ट्री है। अब वो तो एसी के ऊपर चलती है ना। अब उसको मसला ये चलाने के लिए जो यूटिलिटी आपको डीसी की सप्लाई है, वो सबसे पहले आपको उसे स्टेप डाउन करना होगा बक कन्वर्टर के ज़रिए से। वो स्टेप डाउन होगी, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है मेरा, जो कि मैंने भी पढ़ा था उसमें एडवांस ट्रांसमिशन लाइन, ये मास्टर्स का टॉपिक है, पीएचडी में भी पढ़ाया जाता है। तो बक कन्वर्टर के ज़रिए ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप डाउन में, फिर उसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए से रेक्टिफायर से इन्वर्ट करते हैं डीसी टू एसी। एसी जब वो फिर ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करते हैं, फिर इंडस्ट्री को देते हैं, इंडस्ट्री यूज़ करती है एसी को। तो डीसी से यूटिलाइजेशन बहुत इकोनॉमिकली बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हम जिस ज़ुमरे में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन जब नेशनल ग्रिड में वो जॉइंट होती है तो उसको लाजमी हम कन्वर्ट करते हैं डीसी टू एसी में, और उस मकसद के लिए उसमें इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सारी बातें यहाँ तक दुरुस्त हैं, समझ आ गई हैं आशिक साहब आपको? सर ये जो यस नेशनल सर, ग्रिड में समझ आ गया शामिल सर। होगी, जी ये जो नेशनल ग्रिड में शामिल होगी, तो जी। सर इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे? इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखें, मैं पहले तो बता देता हूँ आपको। जब आपकी लाइन आती है ना डीसी ट्रांसमिशन लाइन की, वो तो 2 तारों में होगी और डीसी होगी, ठीक है? इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, ये ज़हन में रखें, ज़रा थोड़ा समझें इस चीज़ को। जो मटियारी टू लाहौर की ट्रांसमिशन लाइन है वो मेरे ख्याल में 650 केवी की है, और नेशनल ग्रिड के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 500 केवी एसी हैं।
और मिटियारिटी लाहौर की जो ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 660 या 650 HVDC हैं। अब इन दोनों के ऑपरेटिंग वोल्टेज भी डिफरेंट है और ये नेचर ऑफ करंट भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि इनको हम जो डीसी की सप्लाई है इसे हम इन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है 660 kV में, ठीक है। या फिर इसका और आसान एक हल ये है कि आप इसको पहले बक कन्वर्टर के ज़रिए से कन्वर्ट करें, जो कि ये हो जाएगी 500 kV के डीसी में, और फिर इसको स्टेप डाउन इन्वर्ट करें, जो कि डीसी टू एसी 500 AC बन जाएगी। उसके बाद नेशनल ग्रिड की 500 AC, और फिर ये जो मिटियारिटी लाहौर की आप आखिर में बना चुके होंगे इन्वर्टर के ज़रिए से 500 HVAC, इन दोनों को आपस में आप बस कपलर के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। अब इनके ज़रिए सिंक्रोनाइजेशन के मॉड्यूल आते हैं। मॉड्यूल सिंक्रोनाइजेशन के मॉड्यूल के अंदर खासियत ये होती है कि इन दोनों सप्लाई जो कि इंडिविजुअल अलग अलग हैं, नेशनल ग्रिड की अलग है और आपकी मिटियारिटी लाहौर की जो कि आप इन्वर्टर से इन्वर्ट करके एसी बना चुके हैं, इनको आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइन कर चुके होते हैं, बस इनको ब्रेकर के ज़रिए से ज्वाइन करना होता है। अब ये ध्यान में रखना होता है कि जब इनको हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सारी टर्म एक ही हैं, तो उस वक्त 4 से 5 शर्तें हैं जो कि मुकम्मल होना ज़रूरी है। दोनों सप्लाई जो सिंक्रोनाइज हो रही है उनकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी सेम होना ज़रूरी है। दोनों अप्लायंसेस जो कि सिंक्रोनाइज हो रही है उनके ऑपरेटिंग जो वोल्टेजेस है वो सेम होना ज़रूरी है। इनके फेज़ एंगल जो कि 120 डिग्री अपार्ट है वो सेम होना ज़रूरी है। इनका फेज़ सीक्वेंस सेम होना ज़रूरी है, और फेज़ सिमेट्री जिसे कहते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जब आपकी बिल्कुल कांस्टेंट सेम सिमेट्री में हो जाएंगी, तब जाके आप सिंक्रोनाइज कर पाते हैं और इसे कॉमन बस करके नेशनल ग्रिड में शामिल कर पाते हैं। तो ये तरीका होता है सिंक्रोनाइज करने का और नेशनल ग्रिड में शामिल करने का एक इंडिविजुअल लाइन को इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल जहन में है आपको तो पूछ लें। क्लियर है सर। ठीक है, ये यस सर, क्लियर सर। एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, मैंने बता तो दिया है, लेकिन मामला ये है कि हर एक चीज़ अपने वक्त के लिहाज से होती है। कुछ चीज़ें कभी बतानी होती है, कुछ चीज़ें कभी बतानी होती है, लेकिन बहरहाल सवाल अपना सवाल है, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट होते हैं और ये इंटरव्यूज़ में बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग एसी वोल्टेज हैं वो आपके 500 kV हैं। डीसी में जो अभी हमारी है वो 600 या 660 HVDC है आपकी केवी में। ये डीसी के ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं। यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें, या फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन अबाउट एमपीटी के बाद। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी जनरेशन। इससे पहले हमने बात की थी किसके ऊपर? इससे पहले हमने बात की थी सोलर जनरेशन के ऊपर, जो कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन सिस्टम के हवाले से हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी कौन सी आती है? ये जो आपकी सोलर है। और नंबर 2 पे कौन सी आती है? विंड जनरेशन। तो जनरेशन बाय विंड सिस्टम। विंड सिस्टम में क्या होता है जी? हवा चल रही होती है और हवा चलने के नतीजे में ये जो इसके ब्लेड्स होते हैं रोटेट करते हैं और इनके अंदर एक जनरेटर लगा हुआ होता है। जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के बाद यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है विंड टरबाइन का। अब विंड टरबाइन या विंड पावर प्लांट जैसे जंभीर में हमारे पास लगा हुआ है, और भी बहुत सारी जगहों पर आप अगर हाईवे पे जाते हैं वहाँ आपको नज़र आता है। और विंड पावर प्लांट लगाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। एक सवाल किसी ने पूछा था कि वो सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं और क्या होता है वगैरह वगैरह। ये याद रखें, कोई भी सिस्टम जो नेशनल ग्रिड में आप शामिल करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं होता कि आपने कल सोचा और परसों लगा दिया उसको नेशनल ग्रिड में। इसकी बाकायदा लोड फ्लो स्टडी और पावर फ्लो स्टडी होती है, ठीक है। आज जो हमारे सुबह लेक्चर हुए थे उनमें आप देखिएगा, मैंने बताया कि लोड फ्लो स्टडी क्या होती है। सबसे पहले लोड फ्लो स्टडी होती है, उसके बाद सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है और फिर वो बहुत बाद में जाके उसमें शामिल होता है। अभी जिस तरह ये मिटियारिटी लाहौर का नेटवर्क नेशनल ग्रिड में शामिल हुआ है, इसी तरीके से कैनप यूनिट 2 नेशनल ग्रिड में शामिल हुआ है। तो ये इतनी आसान या कोई बहुत बच्चों वाली बात नहीं है कि ये इन्होंने बना लिया और डायरेक्ट लेके वो कहा भाई तारे लगाओ और नेशनल ग्रिड में शामिल कर दो। इसके लिए बाकायदा लोड फ्लो स्टडी और पावर फ्लो स्टडी करना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बस ये बात थी जो रह गई थी, मैंने सोचा बताता चलूँ आपको। वापस आते हैं हम विंड पावर प्लांट की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि विंड पावर प्लांट
जहाँ पे भी लगाते हैं हम, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पे विंड चैनल अवेलेबल हो। विंड चैनल के बारे में कोई बताएगा कि विंड चैनल क्या होता है? जी जनाब। सर जो हवा चलने का वो होता है, अच्छा जहाँ पे मैक्सिमम सर एयर का फ्लो आता हो, जैसे मीन्स कि अभी हमारा फ्लो चलता है इस पे जंपीर की तरफ ना सर, समंदर वगैरह की तरफ से। जी बिल्कुल, यही चीज़ है, इसे विंड चैनल कहते हैं। और ख़ास तौर पे विंड चैनल उसे भी कहते हैं जहाँ 24 आवर्स 7 डेज इन अ वीक कंटिन्यूस आपकी विंड अवेलेबल रहे, उस जगह को विंड चैनल कहा जाता है। ठट्ठा के कुछ इलाके हैं वहाँ पे कंटिन्यूस हवा रहती है, जिस तरह मैंने कहा समंदर की जो हवा का रुख है, समंदर का वो जंबीर में और ठट्ठा के इलाकों में, तो इन जगहों पर ही आपको विंड पावर प्लांट लगे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि विंड चैनल ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये वजह है कि हम जहाँ पे विंड चैनल अवेलेबल होता है वहीं पे ही इन सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, तो विंड चैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना एक ज़रिया ज़रूर है, लेकिन विंड चैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो भी डीसी के नेचर में होती है, लेकिन इसमें एक जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर। तो वो जनरेटर कन्वर्ट कर देता है डीसी टू एसी। इस कन्वर्टर के अंदर ये एक जनरेटर होता है, ठीक है। DFIG इसका स्टैंड फॉर मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ब्लेड के ज़रिए से वो डीसी होती है, और इसमें एक जनरेटर लगा होता है जो कन्वर्ट कर देता है डीसी को एसी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक ये डिस्कशन हमारी एंड होती है आज के सेशन के हवाले से। ये सेशन दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे सेम लिंक के साथ, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर है। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, क्यूरी हो तो डिस्कस कर लें। लेस देन अ मिनट रह गया, सेशन को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे सेम लिंक से। सर इसकी बाकायदा ये- 1 साल तक स्टडी होती